أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کو سناؤں اس سے پہلے تمہیدی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، میں دمشق کی مسجد کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے کہ جاءہ رجل، اچانک ایک آدمی آ گیا، ہمارے پاس آ کر کے بیٹھ گیا اور وہ زور سے کہنے لگا، یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الدرداء میں آپ کے پاس مدینہ منورہ سے چل کر کے دمشق آیا ہوں، چل کر کے اپنے پیر پر، نہ کہ کسی سواری کے اوپر بیٹھ کر، نہ اونٹ پر نہ گھوڑے پر، میں چل کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے دمشق آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیوں آیا ہوں؟ ما جئتک لحاجہ، کسی کام کے لیے نہیں آیا، بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، اس روایت کو سننے کے لیے میں مدینہ سے چل کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ ایک روایت کے لیے سفر ہو رہا ہے، ہماری سواریوں کا جیسے نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سہولتیں دی ہیں، اس زمانے کے اندر سہولتیں نہیں تھی، تو چل کر کے ایک آدمی ایک روایت کے لیے سننے کے لیے مسجد دمشق تک گیا۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان نہیں کی، پہلے تو جو چل کر کے آیا، جیسے آپ چل کر کے آئے، اپنے گھر سے مسجد تک آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی چل کر کے دوسرے ملک میں جائے، چل کر کے وہ کسی دارالعلوم کے اندر جائے، آپ چل کر کے اپنے گھر سے نکلے، سواری پر بیٹھ کر کے نکلے اور مسجد تک آئے، یہ بھی آپ کا سفر ہے حصول علم کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تو بھی سن، سرور کونین نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے گا، میرا رب اس کو جنت الفردوس کے راستوں پر چلائے گا۔ آپ نے فرمایا، من خرج لطلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اپنے گھر جاوے۔ اگر اسی درمیان میں کوئی آدمی مر گیا تو اللہ کے نزدیک وہ شہید سمجھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ سے بڑھ کر کے کون سا علم ہو سکتا ہے؟ سرور کونین کے حدیث کے مقابلے میں دوسرا کون سا علم ہو سکتا ہے کہ وحی والا علم سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا سننا اور پڑھنا قبول فرماوے۔ دیکھو علم کتنی عظیم چیز ہے کہ ایک کتا ناپاک جانور ہے، کھانا بھی حرام، اگر وہ کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو بعض صحابہ اکرام فرماتے ہیں 7 مرتبہ برتن کو دھوو، 7 مرتبہ، حالانکہ صحیح روایت کے مطابق 3 مرتبہ اگر دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا، لیکن بعض کا خیال ہے کہ 7 مرتبہ اور آخری مرتبہ برتن کو مانج کر کے دھوو، یعنی مٹی سے دھوو۔ تو ایسا ناپاک جانور کہ ہمارا کوئی برتن وہ جھوٹا کر دے اور اس میں منہ اور اس کا لعاب لگ جائے
تو नापाक हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि कोई आदमी अगर शिकार करे, शिकार, एक शिकार तो अपने हिसाब से फायर से करते हैं। पुराने ज़माने में अरब क्या करते थे, कुत्ते को ट्रेनिंग देते थे, उसको ऐसे आदाब सिखलाते थे और इसके बाद किसी शिकार पर छोड़ते थे। वो शिकार के ऊपर दौड़ कर जाता और अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो शिकार को पकड़ लेता, उस पर हमला करता, उसको दांत मारता और दांत मार करके गिरा देता। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं तो अल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, अगर तुम इन शिकारी जानवरों को ट्रेनिंग दे करके किसी शिकार के ऊपर छोड़ो और वो ट्रेनिंग के मुताबिक शिकार कर ले तो ये शिकार हलाल हो जाता है। एक नापाक कुत्ता जिसने इल्म हासिल किया, जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आदाब बतलाए, उन आदाब को हासिल किया, अल्लाह ने उसी कुत्ते का पकड़ा हुआ शिकार हलाल कर दिया। हालांकि उसका खाना हराम, उसने जिस बर्तन के अंदर मुंह डाल दिया वो पानी हराम, वो नापाक, लेकिन इल्म हासिल करने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते का पकड़ा हुआ शिकार हलाल कर दिया। तो कितनी बड़ी इल्म की फजीलत है। तो ये तो उसने ट्रेनिंग ली है, ऐसे इल्म की वजह से उसका किया हुआ शिकार हलाल है। हम तो कुरान मुकद्दस को सुनते हैं। अल्लाह के नबी उम्मियों के अंदर भेजे गए, बाअस फिल उम्मियीन रसूला, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं कि जिसने अपने रसूल को उम्मियों में भेजा, अनपढ़ों के अंदर भेजा। कौम कैसी? अरब अनपढ़, रसूल भी अनपढ़। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, अपने हबीब को भी अल्लाह उम्मी कहता है। जिन अरबों की तरफ भेजा गया वो अरब, कुरान कहता है उम्मीयीन, वो भी अनपढ़। अपने हबीब को भी टाइटल दिया उम्मी का, और जिन लोगों की तरफ भेजा गया उन अरबों को भी अल्लाह ने कहा उम्मी, ये भी उम्मी, ये भी उम्मी। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने इस कुरान के ज़रिए और वही के उलूम के ज़रिए ऐसी कौम को कि जिनको उम्मी कहा गया, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ने वो एजाज़ अता फरमाया कि ऐसा एजाज़ क़यामत तक आने वाली किसी समाज को नहीं मिल सकता। रोए ज़मीन के ऊपर सिर्फ एक समाज ऐसा आया, एक समाज। अब वो क़यामत तक ऐसा दूसरा समाज नहीं आ सकता। ये ज़मीन और आसमान ऐसा समाज नहीं देख सकते। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब छोटा था मेरे बाप के ऊँटों को चराता था, तो ऊँट चरा करके फिर मैं घर लाता। मेरा बाप मुझे ख़त्ताब बहुत मारता, ऊँट को देखता और मारता, ऊँट को देखता और मारता, यहाँ तक कि मैं कुछ बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो अल्लाह ताला ने मुझको ईमान की दौलत अता फरमाई। उसी ईमान की दौलत की वजह से मैंने कुरान पाक को हासिल किया। एक मरतबा जब ये अमीरुल मुमिनीन बन चुके थे तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए जहाँ पर वो अक्सर अपनी बकरियों, अपने ऊँटों को चराने के लिए आया करते थे। जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो रोने लगे, बहुत रो रहे थे। साहबा इकराम ने पूछा कि अमीरुल मुमिनीन क्या वजह है, आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुझे रोने दो, पेट भर कर रो लेने दो। तो बहुत रोए, बहुत रोए। इसके बाद फिर पूछा कि अब तो आप बताएंगे क्यों रो रहे थे? कहा बात ये है इसी घाटी के ऊपर मैं अपने बाप ख़त्ताब के ऊँटों को चराने के लिए आया करता था। इसी घाटी के ऊपर जब मैं चरा करके वापस पहुँचता तो मेरा बाप ख़त्ताब मुझको सख्त मारता और कहता कि उमर तुझको ऊँट चराते भी नहीं आते, इतना निकम्मा कि ऊँट चराते भी नहीं आते। ये महल्ले के लड़के कितने अपने जानवरों को चरा करके आते हैं। लेकिन आज अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की बरकत से मुझे वो दिन अता फरमाया कि मैं लोगों को चरा रहा हूँ। हज़रत उमर फरमाने लगे लोगों को चरा रहा हूँ, और ऐसा चराया कि मिस्टर गांधी, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, इन्होंने अपनी किताब यंग इंडिया के अंदर लिखा कि अगर इस मुल्क को सही मानों में चलाना है और इस मुल्क के अंदर
अच्छी खासी खैर व बरकत को देखना है तो हिंदुस्तान मुल्क को उमर बिन खत्ताब के तरस के ऊपर चलाना पड़ेगा। अंग्रेज़ मुअर्रिखीन, एक अंग्रेज़ मुअर्रिख नाम मुझे याद नहीं, उसने किताब लिखी जिसका नाम है द 100%, इंग्लिश के अंदर ये किताब है। पहले नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा है उसने, और सेकंड नंबर पर हज़रत उमर बिन खत्ताब का नाम लिखा है। 100 ऐसे महान व्यक्ति उसने जमा किए हैं। तो पहले अपने ईसा का नाम दर्ज किया, दूसरे नंबर पर उमर बिन खत्ताब का नाम दर्ज किया, और अपनी किताब के अंदर लिखता है कि अगर रुए ज़मीन के ऊपर अमनो अमान और शांति और सुख और चैन और समृद्धि पैदा करनी है तो उमर बिन खत्ताब के तरस पर अगर दुनिया के हुक्मरान हुकूमत करने लगे तो फिर से वही खैर व बरकत आ सकती है। ये एक ईसाई कह रहा है, वो हिंदू कह रहा है, ये एक ईसाई कह रहा है। तो उमर बिन खत्ताब ने ये जो कुछ हासिल किया कुरान पाक की बरकत से हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने रुए ज़मीन के ऊपर जो इनको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, ये कुरान पाक के सदके तुफैल अता फरमाया। इसलिए मेरे भाइयों, बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और बड़े खुशकिस्मत हैं वो मेरे अहबाब और मेरे वडील और सज्जन जिन्होंने मुझे आकर के दरख्वास्त की कि कुरान पाक की तफसीर हो। बहुत ये सेंटर जगह हैं, बहुत शौकीन लोग हैं, इमाम साहब भी भोले भाले हैं, आप यहाँ के मुक्तदी भी सुनने के आदी हैं और सुनना पसंद करते हैं। तो हालांकि मगरिब की नमाज के बाद बड़े जो अरबी तलबा हैं इनका मेरा एक पीरियड है और तफसीरी का है, तो मैंने कहा आगे पीछे वक्त करेंगे, लेकिन यहाँ आपको कुर्बानी ज़रूर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा कहना सुनना कबूल करें। सूरह कहफ से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी अजीब व गरीब बातें आपको सुनने को मिलेगी कुरान पाक की, शायद आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं सुनी होगी, और इतना इल्म आपका बढ़ जाएगा। कुरान पाक की तफसीर को पढ़ने वाला और सुनने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता, कभी भी गुमराह नहीं होगा। अगरचे गुमराह फिर के उस पर मेहनत करे, लेकिन उनकी मेहनत उस पर कारगर नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह आगे हम चलाएंगे। आप भी अपने आप को तालिब इल्म समझ करके यहाँ लाए, मजबूर समझ करके नहीं, अपने आप को मोहताज समझ करके नहीं, अपने आप को तालिब इल्म समझ करके, और एक नीयत करे कि इंशाअल्लाह मेरी मौत ऐसी हालत में आवे कि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप भी तालिब इल्म हैं। आप अगर कुरान पाक की तफसीर को सुनते सुनते मर गए तो तालिब इल्म होने की हालत में मरेंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको उलमा के ज़ुमरा में खड़ा करेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।